بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹی پلاننگ، ہمارے شہر اتنے اچھے کیوں نہیں ہیں، اتنے ویل پلانڈ، اتنے ایفیشینٹ کیوں نہیں ہیں جتنے باقی دنیا کے شہر، استنبول، بینکاک، دبئی، ہانگ کانگ۔ بہت سے ڈفرینٹ لوگ اس کی وجہ دیتے ہیں۔ سب سے کامن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پور ہیں، غریب ہیں، ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم اتنے اچھے شہر نہیں بنا سکے، یا ہمارے پاپولیشن بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کتنے پرسنٹ پاپولیشن گروتھ ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ 10 سال بعد کتنی پاپولیشن ہوگی، تو اس لیے ہم سٹیز کو پلان نہیں کر پائے۔ ہمارے سٹیز پلان ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو ماسٹر پلان ہی نہیں ہے شہروں کے، تو ویسے ہی شہر بنائے جا رہے ہیں۔ یا ایک نقطۂ نظر یہ بھی ہے کہ جی ہمارے شہر تو بہت زیادہ پلانڈ ہے، بہت ریگولیٹڈ ہے، پلاننگ کو کم کرنے کی ضرورت ہے، ماسٹر پلانز کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ یا یہ بھی ایک ہے کہ جی ہمارے پاس پروفیشنلز بھی نہیں ہیں۔ بہت وجوہات ہو سکتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتی ہیں، بٹ پروبیبلی 2-3 ایسی وجوہات ہیں، اور ان کی بات جو آج کے اس میں ویڈیو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا ود ایگزامپلس۔ جہاں تک ریسورسز کا تعلق ہے تو یہ تصویر ایگزیکٹلی ڈیفائن کرتی ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں یا نہیں ہیں۔ میرا ہائپوتھیسس بڑا کلیئر ہے کہ we do have the resources to make good efficient cities, however we do not know how to use those resources۔ جس طریقے یہ عقل مند بندہ جو ہے یہ کھڑا ہے، اگر اس کو پتا ہو کہ سیڑھی کیسے استعمال کرنی ہے تو یہ بھی یہی کہے گا کہ میرے پاس تو سیڑھی پراپر کوئی نہیں ہے، اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ میں دیوار کے اس طرف دیکھ سکوں۔ لیٹ می ایکسپلین۔ میرے حساب سے سٹی پلاننگ کو ڈیفائن کرنے کا یا اس کو ایکسپلین کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ تصویر ہے۔ یہ تصویر ہم بچپن میں سب بناتے تھے، ابھی بھی بچے بناتے ہوں گے۔ یہ صرف لنکنگ دا ڈاٹس ہے کہ یہ وہی 40-50-100 ڈاٹس ہیں، وہ ہم پیپر پہ کس جگہ لگاتے ہیں اور ان کو آپس میں کس ترتیب سے لنک کرتے ہیں، بیسیکلی اس تصویر بدل جاتی ہے۔ اسی تصویر میں اسی ڈاٹس اور لائنوں سے یہ بچہ بن گیا، کبوتر، شیر، گھوڑا، ہاتھی ہم بنا سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی سیم از دا کیس ود دا سٹیز۔ سٹی کے اندر ہمارے پاس اسپتال ہونا ضروری ہے، اسکول ہونا ضروری ہے، ریزیڈنسز ہے، گھر ہیں، کمرشل ایریا، ریلوے اسٹیشن، بس اسٹاپ، ایئرپورٹ، یہ ساری وہ ڈاٹس ہیں جو کسی بھی شہر کا حصہ ہوتے ہیں۔ اب اگر ہمیں یہ ڈاٹس صحیح طریقے سے لگا لیں، زیادہ ایفیشنٹلی لگائیں، شہر ایفیشنٹ ہوگا۔ اور ان ڈاٹس کی آپس کی لوکیشنل انٹر سے لوکیشن اور ان کو ہم کس طریقے سے لنک کرتے ہیں، بیسیکلی شہر کی ایفیشنسی کو ڈٹرمن کرتا ہے۔ لیٹ می گیو یو 2-3 ایگزامپلس۔ موسٹ امپورٹنٹ ایگزامپل از لاہور۔ وی آل نو لاہور ہیز این ایئرپورٹ۔ یہ ایئرپورٹ کس جگہ ہے؟ یہ ایئرپورٹ ہمارا بالکل لاہور کے ایسٹ میں موجود ہے، ویری کلوز ٹو انڈین بارڈر۔ اگر ہمیں یہ احساس ہو کہ یہ لاہور کا ایئرپورٹ نہیں ہے بلکہ یہ آدھے سے زیادہ پنجاب کا ایئرپورٹ ہے، کیونکہ کلوزسٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد ہے اور دوسرا لاہور ہے۔ سو اس ایئرپورٹ سے صرف لاہور شہر کے پیسنجرز نہیں ٹریول کرتے بلکہ آس پاس کے گجرانوالہ، فیصل آباد، شیخوپورہ، سینٹرل پنجاب، گجرات، ادھر ملتان تک، تقریباً خانیوال تک، یہ تمام پیسنجرز لاہور سے ہی ٹریول کرتے ہیں۔ سو اگر یہ اس ایئرپورٹ کا سروس ایریا جو ہے وہ لاہور شہر نہیں ہے بلکہ یہ پورا ریجن ہے پنجاب کا، تقریباً اتنا ایریا بنتا ہے، اس طرف تو انڈیا ہے، دوسرا ہاف جو ہے۔ سو ہمیں آئیڈیلی اسپیکنگ اگر ایک کامن سینس کے طریقے سے ایئرپورٹ کی ڈاٹ لگانی ہو تو وچ پلیس وڈ بی دا موسٹ ایفیشینٹ پلیس ٹو پٹ دیٹ ڈاٹ؟ پروبیبلی جہاں لگا ہوا ہے وہاں نہیں، بلکہ یہ اگر یہاں پر کہیں ایئرپورٹ ہوتا تو شاید یہ بہت سے لوگ جو کہ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ ٹریول کرتے ہیں، اترتے اور چڑھتے ہیں،
उन सब को लाहौर शहर में आकर लाहौर को क्रॉस न करना पड़ता और फिर दूसरी एंड पे न पहुंचना पड़ता, और ये हज़ारों गाड़ियों का बर्डन लाहौर शहर पे न पड़ता. It would have been much more convenient or easily accessible to majority of the population जो कि इसका सर्विस एरिया है. इसी को ज़रा और एग्जांपल में डिटेल में देख लेते हैं. लाहौर शहर में वी ऑल नो कि ये एक एयरपोर्ट मौजूद है और वो लाहौर के साउथ ईस्ट में मौजूद है. वी ऑल नो कैंट के इलाके में DHA के पास. लाहौर शहर में एक रेलवे स्टेशन है जो उससे कितनी दूर है ये आपके सामने है, तकरीबन लाहौर के दूसरे किनारे पर है. फिर एक लाहौर का बदामी बाग का बस टर्मिनल है, वो यहाँ पर लोकेटेड है. उसके बाद ये एक कलमा चौक पे एक बस टर्मिनल, इंटरसिटी बस टर्मिनल है, वो यहाँ पे लोकेटेड है. और फिर उसके बाद एक अभी ठोकर पे बस टर्मिनल्स बने हैं और बंद रोड पर हैं और शहर से बाहर ले जा रहे हैं बस स्टेशन. सो ये 4-5 मेन हमारे ट्रांसपोर्ट के हब्स हैं. अब इसमें हम देखते ही हैं कि फर्ज करें ये एक बंदा दुबई से आया है और इसने गुजरांवाला का रहने वाला है, शेखुपुरा का है या फैसलाबाद का है या मुल्तान का है या खानेवाल का है, साहिवाल का है. चूँकि एयरपोर्ट लाहौर ही है इंटरनेशनल, सो वो लाहौर एयरपोर्ट पे उतरा है. उसके साथ ये 4-5 सामान है और वो खड़ा है एयरपोर्ट के बाहर, देख रहा है कि अब मैं अपने घर साहिवाल या गुजरांवाला कैसे पहुंचूं. कैसे पहुंचेगा? ये यहाँ से वाहिद जरिया इसको ले जाने के लिए ये यहाँ से टैक्सी करेगा और वो टैक्सी इसको लेकर जाएगी पूरे शहर क्रॉस करके डाइबू के अड्डे पर, बदामी बाग पे या ठोकर न्याज बेग पे. और एयरपोर्ट लाहौर से 1000 से 1500 2000 से कम कोई टैक्सी नहीं मिलती जो आपको इन बस टर्मिनल्स या रेलवे स्टेशन पे पहुंचाए. और फिर ये वहां से बस में बैठेगा और बस पूरा शहर क्रॉस करके दोबारा निकलेगी और फिर ये गुजरांवाला या साहिवाल पहुंचेगी. कितना ही अच्छा होता अगर एयरपोर्ट लाहौर के बिल्कुल सामने अगर हम एक इंटरसिटी बस टर्मिनल बना देते, तो ये जितने मुसाफिर लाहौर एयरपोर्ट पर उतरते हैं सेंट्रल पंजाब के और दूसरे पंजाब के इलाकों के, उनको ये 3 ट्रिप्स ना करने पड़ते, ना ही वो उनको टैक्सी पे पूरा शहर की सैर करनी पड़ती, बल्कि वहीं से वो सीधे अपनी ट्रॉली लेकर बस में बैठ जाते और बस यहाँ से रिंग रोड पे चढ़ के शहर से बाहर चली जाती जिस भी मोटरवे पे उसने जाना है. रोज़ाना लाहौर में 10 से 20 इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं, हर एक में सैकड़ों पैसेंजर्स होते हैं, तकरीबन हज़ारों गाड़ियाँ, कार्स, मेट्रो बस, मेट्रो टैक्सी और दूसरी टैक्सीज सिर्फ इसलिए शहर पूरा क्रॉस करती हैं लाहौर में और फिर लाहौर से दूसरे ये बस टर्मिनल्स पे या रेलवे स्टेशन पे पहुंचाती हैं, सिर्फ इसलिए कि लाहौर एयरपोर्ट के सामने हम बस टर्मिनल नहीं बना सकते. अब आप मुझे बताइए कि ये एक जो कि जिस वक्त एयरपोर्ट बना था ये बिल्कुल खाली ज़मीन थी मोर और लेस सामने, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी कि एक बस टर्मिनल बनाया जा सकता. इसके लिए कितने रिसोर्सेज चाहिए, कितना अमीर होना चाहिए, कितना बड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए ये सोचने के लिए कि बस के सामने ही, एयरपोर्ट के सामने ही हम ये टर्मिनल क्यों नहीं बना सके. ये वो 6 एग्जाम्पल के तौर पे वो डॉट्स हैं जो इस शहर में होनी है. हमने उनको किस तरीके से और कहाँ लगाना है उस शहर की एफिशिएंसी पे डिटरमिन करेगा. इसकी जो सबसे मॉडर्न और एफिशिएंट एग्जांपल है वो हांगकांग एयरपोर्ट है. हांगकांग एयरपोर्ट पे उतर के ही बगैर कोई टैक्सी किए या इवन वो कहते हैं कि बगैर सूटकेस को ज़मीन से उठाए हुए आप वहीं से, अगर आपने शहर में जाना आपको लिमोजीन मिल जाएगी, आपको टैक्सी सर्विस मिल जाएगी, आपको हांगकांग के सारे शहर के इलाकों के लिए बस सर्विस वहाँ से मिल जाएगी, आपको वहाँ से हांगकांग के सिटी सेंटर तक जाने के लिए जो अंडरग्राउंड ट्यूब है इनकी वो मिल जाएगी. चाइना के जो शहर तकरीबन 100 से ज़्यादा हैं वहाँ तक जो बसें चलती हैं इंटरसिटी, वहाँ से आपको बस मिल जाएगी. और चाइना की 9 डिफरेंट पोर्ट्स जो उसके सामने हैं वहाँ के लिए आपको फेरी सर्विस मिल जाएगी. ऑल दिस कनेक्टिविटी एट वन प्लेस without crossing the city or without going anywhere practically out of the airport. So this is how most efficient cities become. It does not require resources, it requires a little bit of planning
and some consideration for the people as well. दूसरा एक बहुत बड़ा जो हमें शौक है और पिछले कई सालों से, पहले हमने रेलवे स्टेशन के सामने अड्डे होते थे फ्लाइंग कोच के, उन सबको निकाला वहां से। उसके बाद हम बदामी बाग का टर्मिनल शिफ्ट करने के लिए कभी चोंग पे बना रहे हैं, कभी काना में बना रहे हैं, कभी ठोकर न्याज बेग पे, कभी बंद रोड पे जो वो बना रहे हैं अड्डे, कि जी बसों की वजह से शहर में कंजेशन होती है और उसकी वजह से हम नहीं चाहते कि शहर में इतनी बसें आए, सो हम इन अड्डों को शहर से बाहर निकालेंगे। जिस वक्त एक बस ठोकर पे या चोंग में या काने पे आकर रुकेगी, उस वक्त वहां से जितने पैसेंजर्स हैं उन्होंने वहां नहीं रहना, बल्कि उन्होंने लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाना है। वहां से 30-40 रिक्शे और गाड़ियां उस बस से पैसेंजर्स को लेके पूरे शहर में फैल जाएंगी, और इसी तरह से जो पैसेंजर्स ने वहां जाना है उनके लिए 30-40 गाड़ियां चाहिए। दुनिया जहान में मोस्ट ऑफ द एफिशिएंट सिटीज में एंड सिटी सेंटर में करीब जहां पर लोगों को हो, वहां पर इंटरसिटी बस टर्मिनल बनाया जाता है, जहां से उनको आगे से लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मिल जाए और रिक्शा टैक्सी भी कम पैसों में मिल जाए। शहर के किसी भी इलाके से शहर के बाहर के बस टर्मिनल पे जाना काफी एक्सपेंसिव काम होता है, स्पेशली अगर आपने सामान लिया हुआ हो। ये एक एग्जांपल है विक्टोरिया बस स्टेशन लंदन का। ये एन अगर आपके सामने आप देख रहे हैं नक्शे पे, सिटी सेंटर के बीच में है, और ये बहुत पुराना है। उन्होंने इसको बाहर शिफ्ट नहीं किया, बल्कि आज से 10 साल पहले मेरे इत्तला के मुताबिक इसको एक्सपेंड किया गया है, बिकॉज दे वांट टू कीप इट। और यहीं पे ट्रेन्स आती हैं, यहीं पे इंटरसिटी ट्रेन आती है, यहीं पे जो है वो बस टर्मिनल है, और यहीं पे जो है वो ट्यूब स्टेशन भी है इनका। दिस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी सिटी को एफिशिएंट बना देती है, और नंबर ऑफ कार्स और पैसेंजर्स को रिड्यूस करती है, और उनकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कम करती है। दूसरी एग्जांपल है, जैसे दूसरी पब्लिक स्पेसेस हम बनाते हैं शहर के अंदर। पाकिस्तान नेशनल लाइब्रेरी इस्लामाबाद में है। कैन यू इमेजिन ये कहां पर है? ये बिल्कुल शहर जब खत्म हो चुका होता है, ये जो रेड डॉट आपको नजर आ रही है नूरपुर शाह रोड पे या कहीं बनी हुई है, मेन शहर में हमारे लिए इस लाइब्रेरी की कोई जगह नहीं थी। दुनिया जहां में ये लाइब्रेरीज, चाहे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस हो या सियोल की नेशनल लाइब्रेरीज हो, दे आर ऑल इन द सिटी सेंटर, जहां पे लोग आते जाते हैं, लोगों को इजी एक्सेस होती है, ना कि लोगों को पता ही नहीं चले। मुझे तो कई साल तक पता ही नहीं चला कि ये नेशनल लाइब्रेरी है कहाँ पर, बिकॉज वो इतनी छुप के हमने कहीं शहर से बाहर बनाई हुई है। हम इसको जिना सुपरमार्केट के करीब ब्लू एरिया में क्यों नहीं बना सकते थे, ताकि लोग आते जाते लाइब्रेरी से मुस्तफीद हो सके। Now look at this picture again. I repeat कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। इन सारी चीजों में जो मैंने बताई हमें रिसोर्सेज नहीं चाहिए। Rather, bus terminal is usually a profitable terminal. अगर हम एयरपोर्ट के करीब बनाएंगे तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ सकती है। So it is not a matter of resources. And again, I repeat, it's basically linking the dots. जितनी अच्छी हम डॉट्स लिंक कर लेंगे, उतना अच्छा आप शहर जो है वो बना सकते हैं कि कौन सी चीज कहाँ लोकेट करनी है। थैंक यू।